Hi friends, welcome to DM classes. Now we will start with our second chapter of Maths Part 2, that is Pythagoras theorem. So, what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides. It is a statement of Pythagoras theorem. In triangle PQR, angle PQR equal to 90 degree, length of segment PR square equal to length of segment PQ square plus length of segment QR square. We will write this as PR square equal to PQ square plus QR square. Means hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Now Pythagorean triplet. In a triplet of natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. For example, in the triplet 11, 60 and 61, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ी वैल्यू 61 है, तो सबसे पहले हम 61 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 61 स्क्वायर इक्वल टू 3721। इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब हम 60 स्क्वायर और 11 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 60 स्क्वायर इक्वल टू 3600 एंड 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। Then 60 square plus 11 square equal to 3721. It is denoted by second equation from equation first and second. 61 square equal to 60 square plus 11 square. क्योंकि यहाँ दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इक्वल होगी। Therefore 11, 60 and 61 is a Pythagorean triplet. First theorem, property of 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. If acute angles of right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then the side opposite 30 degree angle is half of the hypotenuse and the side opposite of 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse. For example, in the figure, in triangle LMN, angle L equal to 30 degree, angle N equal to 60 degree and angle M equal to 90 degree. Therefore, side opposite 30 degree angle equal to MN equal to 1/2 into LN. Side opposite 60 degree angle equal to LM equal to √3/2 into LN. Means यहाँ बेस हाइपोटेनस के हाफ है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स है। Second, property of 45 degree, 45 degree and 90 degree. If the acute angles of a right angle triangle are 45 degree and 45 degree, then each of the perpendicular sides is 1/√2 times the hypotenuse. For example, see figure in triangle XYZ, xy equal to 1/√2 into zy, xz equal to 1/√2 into zy. Therefore, xy equal to xz equal to 1/√2 into zy. Means इस प्रॉपर्टी में परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होगी। Theorem, similarity and right angle triangle. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. It is a statement of this theorem. According to the theorem, we know that in triangle ABC, angle ABC equal to 90 degree, segment BD is the perpendicular of segment AC and ADC are collinear points. To prove triangle ADB similar to triangle ABC, triangle BDC similar to triangle ABC and triangle ADB similar to triangle BDC. Diagram. A, B, C एंगल बेस 90 डिग्री। थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें क्या गिवन है। थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस। मतलब हमें क्या करना है कि एंगल बी एक 90 डिग्री एंगल तो है, यहाँ पर एंगल बी से हाइपोटेनियस मीन्स ए सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बी डी। तो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री and segment BD is a perpendicular of
hypotenuse AC and ADC are collinear points. To prove अब देखिए स्टेटमेंट में, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। क्या बोला हुआ है कि जब भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस पर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन एक जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा है बी डी सी। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अनुसार हमें प्रूफ करना है कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो होते ही हैं। ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। साथ में ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी के, और सेकंड ट्रायंगल बी डी सी भी सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल हमारे ए बी सी से। तो हमें यही प्रूफ करना है कि सबसे पहले तो ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी डी के, ए बी डी, एंड सेकेंड ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के, बी डी सी। और थर्ड ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर हैं, साथ में एक दूसरे से भी सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए बी सी ए डी बी। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी तो यहाँ 90 डिग्री का है, और जब बी डी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम ए सी के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो मतलब अगर हम इसको सिंपल वे में डायग्राम बनाकर देखें तो ये तो ए बी सी हो गया जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। अब ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए डी बी, एंगल डी क्या है, 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पर एंगल ए बी सी और एंगल ए डी बी दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल ए बी सी एंगल ए डी बी होगा। रीजन क्या होगा, इस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में और ट्रायंगल ए डी बी में, इन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए तो कॉमन है। एंगल ए बी सी में और एंगल ए डी बी में दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी। रीजन होगा कॉमन एंगल। Therefore, by AA टेस्ट एंगल टेस्ट से ये दोनों ही ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। रीजन होगा बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल, अब जैसे हमने यहाँ पर अभी एक ट्रायंगल ए बी सी लिया था, हमने सबसे पहले इसको प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी ले लिया था। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी डी सी के। तो उसके लिए हमें दो ट्रायंगल और कौन से लेने होंगे, ए बी सी और बी डी सी। तो एंगल ए बी सी तो यहाँ पर बना हुआ है, अब मैं बी डी सी को भी यहाँ पर बना देती हूँ। बी एंगल डी 90 डिग्री एंड सी। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी,
अब इन दोनों ट्रायंगल्स में भी देखिए एंगल बी, यहाँ पर एंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी 90 डिग्री और एंगल बी डी सी भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी। बी डी सी रीजन each angle is of मेजर 90 डिग्री। अब सेम एज यहाँ देखिए एंगल सी कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास एंगल ए कॉमन था, यहाँ पर हमारे पास एंगल ए तो नहीं है लेकिन एंगल सी कॉमन है बोल सकते हैं। तो एंगल ए सी बी एंड एंगल बी सी बी, एंगल ए सी बी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी बाय कॉमन एंगल। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल्स को हमने इक्वल बता दिया, तो एंगल टेस्ट से हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख सकती हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। रीजन सेम, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी डी के। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी के। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, मतलब एंगल ए बी सी को हमने इक्वल बता दिया किससे, ए बी डी से और बी डी सी से। जब दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है तो क्या हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी तो वैसे भी इक्वल है ही। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी के सिमिलर क्या है, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। अब यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी, और इन दोनों ही कोई ट्रायंगल को हमने आपस में सिमिलर बता दिया है। ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी आपस में सिमिलर है, मतलब ये तीनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर बता दिया, फिर हमने इसी ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर बता दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो ये तीनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, hence proved. Theorem of geometric mean. In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. P, Q, R. According to the theorem, हमें given है in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse, Q से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं QS PR पर। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है। सेगमेंट QS is a perpendicular of hypotenuse PR. To prove from the opposite vertex is the geometric mean of the segment
into which the hypotenuse is divided। मतलब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है ज्योमेट्रिक मीन से कि ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है क्यू एस का स्क्वायर पी एस इंटू एस आर के इक्वल है। मतलब यहाँ पर ये जो क्यू एस पी आर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो क्यू एस के स्क्वायर के इक्वल होगा। प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री and segment QS is a perpendicular of hypotenuse PR. It is given. Similarly, therefore, triangle RSQ and triangle QSP, triangle RSQ similar to triangle QSP. Reason, similarity of right angle triangles। अब यहाँ पर देखिए, हम इससे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जब भी एक किसी पॉइंट से हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो 2 ट्रायंगल्स बनते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर उसी थ्योरम से हमने यहाँ पर लिखा आर एस क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल क्यू एस पी के। देयरफॉर क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस। अब देखिए ये हमने अब कैसे लिया, 2 ट्रायंगल्स लिए थे हमने आर एस क्यू। अब देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एक अलग ट्रायंगल बना के मैंने आपको दिखा रही हूँ। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अलग से बनाया है जिसमें एंगल एस 90 डिग्री है क्योंकि एंगल क्यू एस इज ए परपेंडिकुलर ऑफ पी आर, तो एंगल एस में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो एंगल एस यहाँ लिख दिया पॉइंट क्यू। अब यहाँ देखिए क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस, इस वाले ट्रायंगल में बेस और बेस करस्पॉन्डिंग है, तो क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस मीन्स आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस। हमने यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का रेशो लिया है, तो क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस एंड आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस बाय corresponding sides of similar triangles। By cross multiplication QS into QS, therefore QS into QS means QS square equal to PS into RS। हमें यही प्रूफ करना था, क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। देयरफॉर सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक mean of segment PS and segment SR। PS and SR, hence proved। Thank you. If you like the video, please press the bell icon